Watch this carefully. This is the breeding place for our wrestlers. The akhada, which has given any number of wrestlers who have brought laurels to the country. Heading this institution for more than half a century now is the 96-year-old Guru Hanuman. Aging but sharp as ever, Guruji still supervises his chelas diligently, telling them about the little techniques and looking after their training sessions to the last detail. Abstemious to a fault, a strict disciplinarian, he is the proverbial pivot of our wrestling destiny. In public memory, nobody has served the cause of wrestling as splendidly as Guruji. He is one who is credited with grooming any number of wrestling stars. None among them perhaps shine as brightly as Satpal, a wrestler whose place in the Indian pantheon is assured forever. मैं कभी कोई टाइम नहीं देखता था। अगर दिन में 12 घंटे 11 घंटे में मेहनत करता था हर रोज, तो मेरा जो सब कुछ पढ़ाई या मेरा जो कुछ भी था वो पहलवानी थी। तो लगन थी, खुद चिट्ठी डालता रहे। छोटा बच्चा 5-7 साल का, पहले दूसरे पढ़े वो उल्टी छोटी चिट्ठी लिखकर डालता। मैं अपने पिताजी के नाम से कि माना चाहता हूँ पहलवानी का सतपाल पहलवान के नाम से। मैंने मेरे पूछा भी, मैंने भी दिखाई मुझे चिट्ठी किसकी आई। पिताजी वो मैडम गया उधर, बोले मतलब लिखी नहीं। बाद में पता लगा ऐसे नहीं लिखी। वो कहते पूत के पाप पालने दिखते हैं। It was 1968 when Satpal came under Guru Hanuman's wings. Born on December 10, 1956 in Bhavana, a small Haryana village 25 kilometers away from Delhi, Satpal took an early fancy for the game. It was his father who directed his young son to Guruji. सारे दिन स्कूल में जाके वहाँ भी खेलना या दौड़ कराना। एक दिन मास्टर ने 5वीं पढ़ता था, तो मास्टर ने इसको पीट दिया। मेरे पता लगे मास्टर ने मारा इसको। किसी ने नहीं बताया, कभी भी शिकायत नहीं करी वहाँ। Satpal showed early promise. He started winning bouts with monotonous regularity. His disciplined approach to life, rigorous training, and intelligence gradually began to pay dividends. Records and awards fell on his laps by hundreds. For 16 years, he was the best in his weight in the national championships. Titles such as Bharat Kumar, Bharat Kesari, Rustam-e-Hind, Hind Kesari, Bharat Bhim, Bharat Balram, Man Bharat Kesari, Mahabharat Kesari, Rustam-e-Bharat, Delhi Kesari and Arjun Award. He has got them all. Bharat Kesari for 12 years and finally the decoration of Padma Shri. Satpal's has truly been a glorious wrestling career. मैं दिल्ली गांव से आया तो मैं 35 किलो का था। मेरा वेट 35 kg था और बिल्कुल सूखा हुआ था। कोई कह भी नहीं सकता था। मेरे फोटो आज भी कोई उसको देखेगा, मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, तो कोई ये कह नहीं सकता कि ये सतपाल है। तो उसका कारण ये था कि फिर जैसे मैं आगे अगले साल में 46 किलो में पहुंच गया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि वही मैं तो। और फिर उसके बाद मैं 48 किलो में, फिर उसके बाद मैं ऐसे बढ़ता चला गया। तो वो कारण यही था कि मेरा कैरेक्टर ठीक था, थोड़ी खुराक भी मिली। उसके बाद मेरे घर वालों ने देखा भी ये तो बड़ा अच्छा लड़ रहा है, लोग भी मुझे इनाम देने लगे। If the honors and akhadas of the country were becoming regular, Satpal was showing a similar streak in competitions abroad. During his illustrious career, he won a silver in the 1974 Tehran Asian Games, a silver in its another edition 4 years later, and in the 1982 Delhi Asiad, won a gold against all odds. It was truly the high point of his career. He has been a Commonwealth gold medalist and won a silver as a young cadet in the World Wrestling Competition. In all, Satpal represented the country 29 times abroad. मेरी पहलवानी के पीछे मेरा पूरा परिवार लगा हुआ था। मेरी छोटी बहन थी, वो सवेरे रात को 2 बजे उठती, भैंस को चारा डालती, उसका चारा काटती, उसको फिर उसका दूध निकालती और उसका दूध निकाल के मेरे पिताजी को देती या मेरे भाई को देती। वो गांव से, जो कि दिल्ली से मेरा 25 किलोमीटर गांव है बवाना, वो वहाँ से दूध को लेके आते। फिर सवेरे वो रात को दही जमाते, उसमें से मक्खन निकालते। तो मेरी माँ जो है वो मक्खन निकालती। तो एक पूरे परिवार का, यानी कि मेरी भाभी का, मेरे भाई का, मेरी बहनों का, पिताजी का, इन सब का एक वो था कि हम कैसे मतलब एक इसको पहलवान बनाएं।
Indian wrestling has traditionally been bound to akhadas. Akhadas are an inescapable aspect of mental build-up of our wrestlers. They grow up here under the supervision of a coach, exercising, working on the muddy wrestling arena, sharing hostels and rubbing mud on their healthy, spirited bodies. When one thinks of wrestling, the image that suddenly comes to mind is that of akhadas. The world, though, has no time for akhadas. Today, it is fought on mats, fast, fit wrestlers relying on aggression and scientific techniques. The grip, the stance, everything is different from akhadas. This has placed the Wrestling Federation of India in a dilemma. What needs to be done in this situation? It is not possible to remove the Indian wrestlers from the mindset of akhadas. At the same time, the world wrestling is conducted on mats. The shift from muddy wrestling grounds to mats has taken some time. भगवान का मेरे ऊपर ऐसा पंजा था, ऐसा आशीर्वाद था कि मैं बचपन से जितनी भी कुश्ती लड़ा हूँ, चाहे वो गांव का मेला है, चाहे वो स्कूल चैंपियनशिप है, चाहे वो दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप है, चाहे नेशनल चैंपियनशिप है, मैं जहाँ भी लड़ा हूँ मैं वहीं जीता हूँ और वहीं चैंपियन बना हूँ। तो ये सब जो एक भावना थी मेरे को जो खिला रहे थे या जो मेरे को कुश्ती मेरी देखने वाले थे, जो दर्शक थे, चाहने वाले थे, तो उनका भी आशीर्वाद मुझे शुरू से मिला है। To this day, Satpal has the same affection and regard for his guru. He realizes that without him, he would be nowhere. To him, Guruji has been the focal point of his whole career. Satpal still occasionally visits the Vyayam Shala that made him, meeting the young wards, taking Ashirwad from his guru, and sometimes visits the room where he stayed. It still has fascinating legacy to his success in the form of various medals and photographs that still adorn the walls. इन आज तक कभी बस एक दिन सिनेमा देखने गया रही और दारा सिंह कोचिंग ने कभी सिनेमा नहीं देखा, न कोई कभी बच्चों झगड़ा करे स्कूल में। आज तक इसका रिकॉर्ड है। ये लाइन में भी कहते हैं ना, इधर वक्त बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो सतपाल जैसा पहलवान गुरुजी तुम्हारे पास नहीं मिलेगा, बड़े भाग्य से मिलता है। तो ऐसे मैं तो इनकी माता जी को, पिताजी को धन्यवाद देता हूँ, ऐसा लाभ दिया। मेरे को यहाँ गुरुजी के पास जब मैं आया तो जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, तो गुरुजी ने मुझे माँ का, पिताजी का, गुरु का वो सारा प्यार मुझे यहीं से मिला है। क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो मैं 11 साल का था और 11 साल से आज मैं 38-39 साल का हूँ। तो अभी तक मैं गुरुजी ने ही मेरे को जो कुछ शिक्षा या जो कुछ भी एक गुरु अपने शिष्य को दे सकता है वो मुझे सब गुरुजी के यहाँ से मिला है। फिर बाद में कोई शिकायत नहीं, कोई स्कूल से शिकायत नहीं, कोई मास्टर से शिकायत नहीं, न इसने शिकायत की। आज तक मेरे को साथ झगड़ा किया, किसको किया। जैसे एक बार हम स्कूल में से 5-6 लड़के पिक्चर देखने चले गए कि भाई किंग कांग जो है फिल्म थी तो उसमें कुश्ती है, तो वो मुझे सब ले गए। तो मैं पिक्चर को जानता नहीं था क्योंकि मैं तो गांव से आया था और मैं जानता नहीं था कि फ़िल्म क्या चीज़ होती है। लेकिन जब सबने कहा कि भाई उसमें कुश्ती है तो उसमें उस टाइम 40 पैसे की टिकट आती थी। तो हमने स्कूल में से बच्चों से 5-5, 10-10 पैसे इकट्ठे किए और हम पिक्चर देखने चले गए। गुरुजी की ये खासियत थी कि गुरुजी हमें स्कूल में भी चेक करते थे कि ये बच्चे कहीं आवारा तो नहीं घूमते हैं। तो गुरुजी किसी भी दिन बिगड़ बताए चले जाते थे। Olympics has been the focal point of his career. The one regret that Satpal has is the lack of an Olympic medal to show. He took part in the Munich Olympics of 1976 when he was only 16. मैं कभी भी वो झगड़े की फाइट नहीं करता था। जैसे कभी किसी में झगड़ा हो गया, वो कोई कहता जीत गया, कोई कहता नहीं जीता, तो मैं हमेशा जो कुश्ती जीता हूँ या लड़ा हूँ तो वो बड़ी एक सफाई से लड़ा हूँ। कोई भी ऐसी कुश्ती नहीं लड़ा हूँ जिसमें झगड़ा हुआ है। तो इस करके और मेरी कुश्ती होती थी वो बहुत तेज़ होती थी, यानी कि उसमें कला होती थी कुश्ती में, जिसको लोग चाहते थे, जिसको लोग पसंद करते थे। और यही कारण था कि मुझे इतना प्रोत्साहन मिलता गया। जिंदा इनके मेडलों से हूँ, इनके मेडलों से जिंदा हूँ मैं। मैंने कहा अपने परिवार वालों को कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा, मैं 82 के बाद में जो एशियाड थे दिल्ली में, उसके बाद मैं शादी करवाऊँगा। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी तो इतना शादी का इतना ख्याल भी नहीं था कि अभी से शादी करनी है या नहीं। अभी तो मतलब पढ़ाई की तरफ ही ध्यान था ज़्यादा। मैं इनको पहली बार देखा, उससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था। तो मेरा एक रूममेट था, मेरा साथी था, जिसने जो मेरा जगवंदर, तो मैं वो मेरे साथ ही खड़ा था। वहीं ये स्टेडियम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने इसको देख के उसको दिखाया क्योंकि वो मेरा सलाहकार था। पापा से ये सुना कि पापा उनके घर गए थे
इनके यहाँ गए रिश्ते के लिए, तो तब मेरे मन में ज़रूर आया था कि अब मैं शादी करूँ तो इनसे ही करूँ। तो मैंने उसको बताया कि ये लड़की है जिससे मेरी शादी की बात चली थी, तो ये कैसी लग रही है तुझे? तो उसने कहा कि देखा, उसने देख के बोला कि जी, मैं कहा तो भाई ठीक है, अगर मैं यहाँ गोल्ड मेडल जीतता हूँ तो मैं इस लड़की से शादी करूँगा। तो ये एक इत्तेफाक की बात थी कि मैंने वहाँ गोल्ड मेडल जीता, और उस गोल्ड मेडल भी कैसे जीता, सब देशों को हरा के, इराक, पाकिस्तान, ईरान, मंगोलिया, जापान, कोरिया, इन सब को हरा के वहाँ गोल्ड मेडल जीता। तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद जो आज मेरी मिसेज हैं, इनकी वजह से ही मुझे ये मेडल मिला। The fairy tale had a happy ending, and today Satpal leads a contented married life with his 2 small children and wife. But can a celebrity like him, and a strict disciplinarian to boot, devote the kind of time and attention that his family expects him to? मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और जैसे कि साल में 15 दिन तो 2-2 बार हमने 6 महीने के बाद में मैंने अपने बच्चों के लिए फ्री रखे हैं। हम बाहर जाते हैं कहीं भी, कभी काठमांडू चले गए, कभी गोवा चले गए, कभी कहीं भी चले गए, तो मैं बच्चों के साथ पूरा टाइम देता हूँ। इसके अलावा महीने में 1 या 2 बार हम जो है हर सैटरडे संडे को तो नहीं, बीच में जो मेरा कोई ज़रूरी प्रोग्राम नहीं है तो उसको काट के मैं इनके साथ में पूरा टाइम देता हूँ। The proud father has ambitious plans for his children related naturally to sports. He is willing to extend all support to his children to help them realize his dream through them. आज मेरे बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी लड़की है, लड़की टेनिस की चैंपियन बने, क्योंकि मेरी हाइट 6 फीट है, मेरी मिसेज की हाइट है 5'5" है, तो हमारे बच्चे भी फिजिकली रूप से भी फिट हैं, और उनके लिए वो सुविधा भी है। हमारे लिए तो उस टाइम जो हमारे माताजी थे, पिताजी थे, वो मेरे बहन भाइयों के मुंह में से निकाल कर हमें खिलाया है, लेकिन आज हम इस पोजीशन पे हैं कि हम उनको अच्छे तरीके से खिला सकते हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको फैसिलिटीज़ सब सुविधा दे सकते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि लड़की भी मेरी चैंपियन बने। For his son, his plans are even more meticulous. Satpal wants him to achieve one goal that he himself, for one reason or the other, could not. मेरी फर्स्ट चॉइस तो ये होगी कि मैं इसको पहलवान बनाऊं, क्योंकि अभी तक जो उसका एक जो फ्यूचर दिख रहा है, तो वो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा पहलवान बनेगा। फिर भी मैं उसकी चॉइस को ज़्यादा महत्व दूंगा, मैं उस पर थोपना नहीं चाहूँगा कोई भी चीज़। मैं ये चाहूँगा कि वो उसकी चॉइस हो। अगर वो टेनिस खेलना चाहता है तो मैं इसको टेनिस में डालूँगा, अगर वो कुश्ती करना चाहता है तो कुश्ती करवाना चाहूँगा, अगर वो कोई दूसरी लाइन ज्वाइन करता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो फिल्मी लाइन हो, वो जहाँ भी हो वो एक अच्छा यानी कि देश के लिए कुछ करे। वैसे मेरी जो दिली चॉइस है वो ये है कि ये जो ओलंपिक गोल्ड मेडल मैं नहीं ला सका, वो गोल्ड मेडल ये लाए। After the 1982 Delhi Asiad, Satpal knew his playing days were coming to an end. The late Rajiv Gandhi was very impressed with his performance, and on his recommendations, Satpal was made the Deputy Director of Delhi Administration for Education in Sports. Today, he looks after the sports in schools from his office in the Chhatrasal Stadium, plays tennis in his off time, and trains various promising wrestlers who occupy the hostels at the back of the stadium. कुश्ती हम उसको जो एक ग्रामीण खेल है या एक मध्यम परिवार का खेल है, और इसमें बहुत एक कहावत है कि जैसे लोहे के चने चबाने, तो वो इसमें सब चीज़ें कुश्ती में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कुश्ती इतना इसका प्रचार करें, इतना इसको बढ़ाएं कुश्ती को, कि भारत के हर हिस्से में आज भी खेली जाती है, लेकिन क्योंकि अब ओलंपिक में गद्दे के ऊपर होने लगी, पहले मिट्टी में होती थी। तो जहाँ तक कुश्ती का सवाल है ना, कुश्ती के लिए मैं इतना करना चाहता हूँ कि ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल हैं तो 10 के 10 भारत में आए। He has a few assistant coaches to help him in coaching the new techniques to the aspiring wrestlers.
for he does not want the story of his failure at Olympics to be repeated with them. बाहर जाके मुझे कुछ दिक्कत होती थी, फॉरेन में, विदेशों में मैं जब जाता था तो वहाँ मुझे दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं शाकाहारी हूँ। तो बाहर जो है वो शाकाहारी के लिए जो डाइट में यहाँ खाता था, जो खुराक मेरी यहाँ पे थी, जैसे मैंने बताया गांव से मेरा दूध आता था, मक्खन आता था, घी आता था, तो वो चीज़ हमें वहाँ नहीं मिलती थी। और उसके नहीं मिलने से जब आप 10 दिन 15 दिन तक अगर आपकी खुराक या आपकी डाइट एकदम चेंज हो जाएगी, तो मेरे साथ वही होता था। नहीं तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ कहना चाह रहा हूँ कि मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकता था। To make up for the limitations inherent in the techniques of akhadas and keep up with the changing international methods and techniques, Satpal is leaving no stone unturned in coaching of his students. The entire training process of his wards is full of scientific exercises and latest equipment, and mats have been imported so that his students are able to meet the challenge posed by the best in the world. जो आज कुश्ती का, क्योंकि एक उसको मॉडिफिकेशन हो गया, उसके जो पहले हम 3 घंटे लड़ते थे, आज सिर्फ 5 मिनट होती है। उस 5 मिनट की तैयारी हमें करके चलना पड़ेगा। और मैं जो अब कोशिश कर रहा हूँ, या मैं जहाँ भी, ये नहीं कि मैं इन्हीं बच्चों को दे रहा हूँ, जहाँ कुश्ती चल रही है भारत के किसी भी हिस्से में, जहाँ अखाड़े चल रहे हैं या कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, मैं वहाँ जाता हूँ और 1 दिन या 2 दिन मैं उनको ट्रेनिंग दे के आता हूँ, बता के आता हूँ कि आप उनके कोच को बता के आता हूँ कि आप इस तरीके से इनकी ट्रेनिंग करवाएं, ये आप इनको ये चीज़ करवाएं। क्योंकि आज जो एक ज़माना था दंड बैठक लगाने का, मैं खुद लगाता था, 5000 बैठक लगाता था, 5000 दंड लगाता था, 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते थे। तो आज एकदम उसमें चेंज आ गया। The times have changed, but there is little denying of the role Satpal can still play in promotion of the sport. He coaches his students on the mat, unlike the one on akhadas that his guru used for young talents like him, and is happy to see young boys making their mark in competitions. There are over 150 wards with him, and the likes of Rakesh Kumar and Virendra Kumar are already mentioned as gold medal prospects in Olympics in future. Both of them won gold medals in the World Championships for cadets last year. Satpal is no longer playing active sport, but his wealth of experience and commitment to wrestling could still be utilized. His one dream is to have an Olympic medal for the country. If not he himself, then let there be a young ward who does it. Till then, he would be restless in quest. अगर ऐसा जीवन मुझे दोबारा मिलेगा तो मैं उसी से ज़्यादा संतुष्ट होऊंगा। लेकिन एक बात मैं और चाहूँगा उसके अलावा, कि जो मैंने पहले भी बताया कि एक ओलंपिक गोल्ड मेडल ऐसा है जो मेरे बार बार एक जहन में, मेरे दिमाग में या मेरे शरीर से निकल नहीं पाता। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं दोबारा जन्म लूँगा इसी उसमें, ये सब तो मैं जो मुझे मिला है मैं यही चाहूँगा, लेकिन इसमें एक वो अध्याय और जोड़ना चाहूँगा कि ओलंपिक गोल्ड मेडल भी मेरे साथ हो।
This one ambition has become the driving force motivating Satpal to work towards fulfilling his lifelong ambition. It is immaterial whether it is his son who fulfills this ambition or one of his numerous students whom he treats like his own children. Satpal will not be at peace with himself till he gets the Olympic gold that has eluded him all his life. Till then, for this Karma Yogi, life goes on in as disciplined and tougher way as it always did. The best wishes of an entire nation are with him, and there is little doubt that Satpal will one day realize that elusive dream.